Welcome children. In our last session, we have discussed about the male reproductive structure and the development of the male gamete. Today we will discuss the female reproductive system, the female reproductive structure, and development of female gametophyte. And female gamete. Okay, so today we are going to discuss female reproductive structure and development of female gametophyte and female gametes. Okay, so here female reproductive structure तो ठीक है, आप सबको पता है gynoecium is the female reproductive structure. Then female gametophyte, हम जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेल गैमेटोफाइट. सो व्हिच स्ट्रक्चर इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट? ऑफ कोर्स इट इज पोलन ग्रेन बिकॉज it carries the male gamete. Okay, so similarly here also we'll study a structure which is developed in the female reproductive structure and known as female gametophyte, and that carries the female gamete. Okay, so let us first discuss the female reproductive structure. The female reproductive part is known as gynoecium. So here here children will discuss three terms, and I want to make you very clear about these three terms. Often you are confused by this. One is gynoecium, then carpel and pistil. Okay, what is gynoecium? Gynoecium represents the female reproductive part. It is the female reproductive part. Now what is carpel and what is pistil? Now come to the carpel. Carpel is the unit member of gynoecium, which consists of stigma, one style and one ovary. See, here I am writing one stigma, one style and one ovary. So that is known as carpel. Very important children. Gynoecium is the whole female reproductive part that is present in a flower. It may be 2 carpel, 3 carpel, whatever the number of carpels, together they constitute the gynoecium. Now what is carpel? Carpel means the unit member of gynoecium, which consists of one stigma, one style and one ovary. Now what is pistil? So pistil is used synonymously with carpel. We often think that हम सोचते हैं कि कार्पेल एंड पिस्टिल में डिफरेंस नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सेम है in some cases, but there are certain cases where the pistil and carpels are not same. So what is the pistil? The pistil represents the
ओवारियन कंडीशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये तीनों का डायग्राम करके पहले बताती हूँ। ठीक है, देखो गाइनोसियम तो पूरा फ्लावर का जो टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स है, उसको हम गाइनोसियम बोले। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं एक देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपका होता क्या है, ये है थैलेमस। ओके, थैलेमस के बाद इसके ऊपर क्या होता है, ओवरी। ओके, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो ये एक यूनिट स्ट्रक्चर है, दिस इज ए यूनिट स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्पेल। तो कार्पेल मतलब क्या है, वन स्टिग्मा, वन स्टाइल एंड वन ओवरी। कार्पेल मीन्स वन स्टिग्मा, one sorry one stigma, one style, one ovary। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं दिस इज ए सिंगल कार्पेल। ठीक है, बट देर आर कंडीशंस वेयर फ्लावर एक है, यानी आपका थैलेमस एक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपके जो कार्पेल्स है वो 3 है, यानी या 2 है, जो भी हो, मैं यहाँ 3 बना रही हूँ। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 3 ओवरी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड 3 कार्पेल। 3 कार्पेल, यहां हम बोलेंगे इसको 3 कार्पेल्स। 3 कार्पेल्स यानी यहां पर कितना है, आप देखो 3 स्टिग्मा है, 1 2 3 स्टिग्मा। तो 3 स्टिग्मा, 3 स्टाइल एंड 3 ओवरीज। ठीक है, ये ओवरी भी अलग है, स्टाइल भी अलग है एंड स्टिग्मा भी अलग है। तो यहाँ क्या है आपका 3 कार्पेल है। ठीक है, बट देयर इज कंडीशन, एक कंडीशन एक और होता है जिसमें कि एक ही फ्लावर में क्या होता है आपका, कार्पेल तो होते हैं बहुत सारे, या फिर आप 3 ही ले लो, कार्पेल 3 होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना आपका, यहाँ आप देख सकते हो इसका जो ओवरी है, तीनों कार्पेल का ओवरी फ्यूज्ड है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 कार्पेल्स। ओके, एंड दिस, ये 3 कार्पेल में आपका क्या है, 3 स्टिग्मा, 3 स्टाइल भी हो सकते हैं, या एक स्टाइल हो सकता है, फ्यूज हो सकते हैं, बट 1 ओवरी। यानी अगर आपके 3 कार्पेल है या 2 कार्पेल है या फिर मोर देन 1 कार्पेल है, लेकिन उसका ओवरी अगर फ्यूज्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज पिस्टिल। उसको हम बोलेंगे पिस्टिल। सो हियर एज आई सेड, मैंने जैसे आपको बोला कि पिस्टिल इज एप्लीकेबल फॉर द ओवरियन कंडीशन। तो अगेन लेट मी क्लैरिफाई हियर। देखो पहले केस में क्या है, दिस इज ए कार्पेल, एक कार्पेल। तो यहाँ पर क्या है, एक ही ओवरी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
दिस केस, इन दिस केस, अच्छा यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, एक कार्पेल, एक पिस्टिल, क्योंकि ओवरी एक है, एंड वन गाइनोसियम, वन गाइनोसियम। तो इस कंडीशन को गाइनोएसियम, ओके, इस कंडीशन को, जिस फ्लावर में एक ही कार्पेल होता है, उसका ओवरी में फ्यूजन नहीं होता, तो ऐसे गाइनोसियम को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी गाइनोएसियम। Am I clear? ठीक है, आपका गाइनोसियम इज द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का यूनिट मेंबर होता है कार्पेल, एंड एक कार्पेल में एक ओवरी, एक स्टाइल एंड एक स्टिग्मा होता है। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में मोर देन वन कार्पेल है, ठीक है, लेकिन उन्हीं कार्पेल्स का जितने सारे ओवरी है वो ओवरी अलग अलग है, तो हम उसको भी कार्पेल ही बोलेंगे। उस केस में हम 3 कार्पेल बोलेंगे। लेकिन ये ओवरी जब फ्यूज हो जाता है तब भी हम क्या बोलेंगे, 3 कार्पेल। बट पिस्टिल कब बोलेंगे, तो यहाँ आप देखो, इज इट क्लियर कि यहाँ पर एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, तो हम यहाँ पर एक ही कार्पेल को एक ही पिस्टिल बोलेंगे। तो कार्पेल एंड पिस्टिल यहाँ पर सेम थिंग है, ओके। बट आप इस केस में आप देखो, दूसरे केस में, इस केस में देखो 3 कार्पेल है। ये तीनों कार्पेल के जो ओवरी है, स्टाइल है एंड स्टिग्मा, ये तीनों अलग अलग है। तो ये हो गया क्या, 3 कार्पेल, ओके। तो पिस्टिल भी कितना हुआ, 3 पिस्टिल, एंड गाइनोसियम 1 गाइनोसियम। सो गाइनोसियम इज ऑलवेज 1, चाहे जितने भी कार्पेल या पिस्टिल हो, गाइनोसियम एक ही होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, 3 कार्पेल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई और मल्टी कार्पेलरी। यहाँ क्या है, ये तीनों फ्यूज नहीं है, सेपरेट है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस जब फ्री होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस गाइनोसियम, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड कंडीशन। ये थर्ड कंडीशन में बच्चे देखो, यहाँ पर आपका दिस इज सिंगल गाइनोसियम, तो यहाँ पर आपके कितने कार्पेल है, कार्पेल आपको ऐसे सेपरेट दिख नहीं रहा है, बट आप ऊपर से देखोगे तो इसका 3 स्टिग्मा है अलग अलग, या फिर ये तीनों भी फ्यूज होके एक दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्पेल है, 3 कार्पेल्स, ओके। और पिस्टिल कितना है, पिस्टिल यहाँ पर 1 है, क्योंकि तीनों कार्पेल का जो पिस्टिल ओवरी है वो फ्यूज होके एक ही बना है। सो 1 पिस्टिल एंड 1 गाइनोसियम, ओके। तो यहाँ पर इसमें, इस फ्लावर में, इस तरह का फ्लावर में हम गाइनोसियम का कंडीशन को क्या बोलेंगे, यहाँ 3 कार्पेल हमने लिया तो ट्राई या फिर मल्टी बोल सकते हैं, कार्पेलरी सिनकार्पस। सिनकार्पस क्यों, यहाँ पर फ्यूज हो चुका है, ओवरी जो है वो फ्यूज हुआ है। चाहे उसका स्टाइल या स्टिग्मा फ्यूज हो या ना हो, हम फ्यूजन हम देखेंगे ओवरी, ठीक है। अगर ओवरी फ्यूज हो चुका है तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस गाइनोसियम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो, कार्पेल एंड पिस्टिल आर सेम थिंग बट नॉट ऑलवेज। किस केस में सेम है, जिस केस में एक ही कार्पेल है उस केस में आपका ओवरी में ना कोई फ्यूजन है
ना डिवीज़न है, कुछ नहीं है। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, एक कार्पेल, उसी को ही हम बोलेंगे पिस्टिल। ठीक है। एंड ये किस तरह का फ्लावर में दिखाई देता है, मोनोकार्पेलरी गायनोसियम में। दूसरा केस, जैसे एक से ज़्यादा कार्पेल है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कार्पेल दिखाया, लेकिन ये तीनों कार्पेल के जो ओवरी है वो अलग अलग है, तीनों फ्यूज नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, कार्पेल भी 3 हुआ, पिस्टिल भी 3 हुआ, मतलब ओवरी 3 है। और ये किस केस में दिखाई देता है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनोसियम। एपोकार्पस मीन्स नॉट फ्यूज्ड, मीन्स फ्री। तो यहाँ पर आपका हो गया, पिस्टिल जो है कार्पेल वही है, लेकिन इस केस में, इन दिस केस, कार्पेल एंड पिस्टिल आर नॉट सेम थिंग। व्हाई? बिकॉज यहाँ कार्पेल तो 3 है, लेकिन उन 3 कार्पेल्स का जो ओवरी है, तीनों ओवरी फ्यूज होकर एक ओवरी बनाए हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि बिकॉज आई हैव सेड यू दैट द कंडीशन ऑफ द ओवरी इज नोन एज पिस्टिल। तो यहाँ पर ओवरी का कंडीशन को हम बोलेंगे पिस्टिल। तो यहाँ पिस्टिल कितना हुआ आपका, ओवरी 1, यानी एक पिस्टिल। एक पिस्टिल मतलब 1 ओवरी। 3 कार्पेल मीन्स 3 कार्पेल है, लेकिन सारे कार्पेल का ओवरी जो है वो फ्यूज हो गया है, फ्यूज होके एक ही ओवरी बनाया है। तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे 1 पिस्टिल एंड 3 कार्पेल्स। तो ये किस कंडीशन में किस तरह के फ्लावर में दिखाई देता है, मल्टी कार्पेलरी, ज़्यादा कार्पेल होंगे लेकिन सारे कार्पेल फ्यूज होंगे। तो इस तरह का फ्लावर में ये कंडीशन दिखाई देता है। एंड आई होप इट दीज 3 टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, now come to the तो चाहे आप, मैं एक ही स्ट्रक्चर ले रही हूँ, तो चाहे आप पिस्टिल बोलो या कार्पेल बोलो, सेम चीज़ है यहाँ पर इन दिस कंडीशन। तो एक फ्लावर का यू ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, मैंने जो समझा रही हूँ ना उसमें सारा डायग्राम करके आप लेवलिंग करना मत भूलो। आप डायग्राम तो करते हो बट लेवलिंग नहीं करते, तो डायग्राम विदाउट लेवलिंग इज़ ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, जैसे बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन उसको हमने नाम नहीं दिया, बड़ा हो गया बच्चा, ठीक है, तो उसको जानेंगे कैसे, किस नाम से जानेंगे हम। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, डायग्राम विदाउट लेवलिंग इज ऑफ नो वैल्यू। ओके, सो नाउ कम टू ए सिंगल कार्पेल। एक कार्पेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, एंड ये स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म for the pollen grain. I have already told this. Okay, now then this is style. The style is the elongated hollow tubular structure. ओके, देन नेक्स्ट है आपका ओवरी। जितना सारा कंफ्यूजन होता है ना, ये ओवरी को लेके होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसल और बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल और कार्पेल। तो ये एक पिस्टिल एक कार्पेल सेम होता है यहाँ पर। तो अभी हम देखेंगे इस ओवरी के अंदर होता क्या है। ओवरी के अंदर एक कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं लोक्यू। There is a cavity inside it. It is called ovarian cavity or locule. So ovary क्या है? Ovary is the basal bulged part. Okay, and inside the ovary,
a cavity is present called ovarian cavity और लोक्यूल. क्या बोलते हैं हम? ओवारियन कैविटी और लोक्यूल. ओके, अभी आप याद करो, आप क्लास 11th में प्लासेंटा के बारे में पढ़े थे. तो व्हाट इज प्लासेंटा? ये ओवारियन कैविटी के अंदर, इनसाइड द ओवारियन कैविटी, अभी देखो प्लासेंटा. प्लासेंटा क्या है? द न्यूट्रिटिव टिश्यू present in the ovarian cavity which holds the resources for the development of ओव्यूल इनटू सीड. देखो, आपके फ्यूचर में जो फ्लावर का ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होता है. ऑल ऑफ यू नो दिस. तो ये जो ओव्यूल से सीड डेवलपमेंट होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए. सो दैट न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द प्लासेंटा. तो प्लासेंटा क्या है आपका? द प्लासेंटा इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच होल्ड्स द ओव्यूल. ओव्यूल को वो होल्ड करता है. ठीक है. नाउ अभी हम देखेंगे कि ये जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा में कैविटी which holds the, remember this one, which holds the resources for the development of the ovule. तो ओव्यूल होता कहाँ है? The ovule develops from the ovules are arising from the placenta. ये प्लासेंटा से ही अराइज होता है. ओके, तो किसी भी ओवारी में एक ओव्यूल हो सकता है या फिर मोर देन वन ओव्यूल हो सकता है. एंड दिस ओव्यूल इज अदरवाइज नोन एज मेगास्पोरांजियम. They are called megasporangium. Megasporangium. Okay. Megasporangium मतलब क्या है? ओव्यूल. रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इससे पहले क्या पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में? माइक्रोस्पोरांजियम. और ये ओव्यूल जो है दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरांजियम. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए ओव्यूल और ए सिंगल मेगास्पोरांजियम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ ए मेगास्पोरांजियम. अच्छा, मैं यहाँ एक in most of the cases, in most of the angiosperms, the ovule is anatropous ovule. In most of the angiosperms, the ovule is anatropous. Means इन्वर्टेड. मीन्स इन्वर्टेड, ये उल्टा होता है. ओके. नाउ ये स्ट्रक्चर, यू ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम.
So this is the structure of a ovule, अनाट्रोपोस ओव्यूल. ठीक है, तो देखो ये अनाट्रोपोस ओव्यूल जो है, लेट मी लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ओव्यूल. It has two layered integument. So this is outer integument and this is inner integument. ओके, ये हो गया दो आउटर कवरिंग. ओके, नाउ inner to this integument you can see this region. ये रीजन आप देख सकते हो, दिस पोर्शन. ओके, ये पार्ट आप देख सकते हो. दिस पार्ट इज नोन एज nucellus. दिस इज कॉल्ड nucellus. This is called nucellus. Okay, then at this end you can see a small opening is there, that is called micropyle. Okay, अच्छा, since the micropyle is present in at this end, so this pole, इसका दो पोल होता है. This is one pole and this is another pole. So this pole is known as micropylar pole. Okay, and this basal part of the ovule is known as chalaza. It is called chalaza. So since chalaza is present here, तो इसको हम क्या बोलेंगे? This is chalazal pole. Clear? So the basal part is known as chalaza and the basal portion is called chalazal pole. That pole is called chalazal pole. Okay, now come to, there is a stalk. यहाँ पर आप एक स्टॉक देख सकते हो, by which it remains attached to the placenta because it arises from the placenta. placenta से arise होता है, तो ये placenta से attached होता है and this stalk is known as funicle. This is called funicle. Okay, इसके अलावा यहाँ पर आप एक depressed portion देख सकते हो. This depressed part is called hilum. This is called hilum. Okay, and सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि सेंटर में है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो सेक. दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो सेक. ठीक है, आपको अगर एग्जाम में ये डायग्राम का आपको पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर अनाट्रोपोस ओव्यूल. आजकल वो डायग्राम भी पूछता नहीं, वो डायग्राम दे देता है, आपको लेबलिंग करने बोलता है. ठीक है, तो अभी आपका जो एम्ब्रियोसेक मैंने बोला, तो एम्ब्रियोसेक का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, लेकिन मैं अभी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ. आपको पहले एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट कैसे होता है बताऊंगी, उसके बाद आपको अनाट्रोपोस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक कैसे होता है वो मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, सो अभी हम चलेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ that is ovule or megasporangium. Okay, now how this development of megaspore takes place. Okay, so next topic is megaspore. जैसे हम पढ़े थे ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. Similarly here, megasporogenesis.
So what is megasporogenesis? This is the process of formation of megaspores from megaspore mother cell. Okay, so the process of formation of megaspores from megaspore mother cell is called megasporogenesis. तो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल को हम क्या लिख सकते हैं, MMC. ओके, and this process takes place at the micropylar region. Okay, this process takes place in the micropylar region of न्यूसेलस. ठीक है, न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर रीजन में ये प्रोसेस होता है. ठीक है, यानी ये देखो आपका जो ओव्यूल है, देखो ये जो है दिस इज योर न्यूसेलस. बट इनिशियली जब ओव्यूल डेवलपमेंट होता है ना, तब ये एम्ब्रियोसेक नहीं होता. ठीक है, आप मान के चलो कि ये जो बीच में हमने एम्ब्रियोसेक बनाया जो बुक में आपका दिया हुआ है, दिस इज नॉट प्रेजेंट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द बिफोर मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले ये स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका न्यू सेलर सेल्स होते हैं, या फिर उसको हम बोल सकते हैं न्यू सेलस होते हैं. ठीक है, तो अभी आपका ये है आपका ओव्यूल. ठीक है, ओके, ये ओव्यूल के अंदर क्या है, ये सब न्यू सेलस है. ठीक है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड ये है न्यू सेलस. ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होता है, एट द माइक्रोपाइलर एंड वन ऑफ द न्यू सेलर सेल, एक ही न्यू सेलर सेल जो कि लार्ज इन साइज में बड़ा होता है, एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ठीक है, सो टेक्स प्लेस इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यू सेलस. ओके, एंड ये कैसे बनता है, वन ऑफ द न्यू सेलर सेल becomes large and contains dense cytoplasm and a prominent nucleus. ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे सेल है, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है आपका, एक सेल जो कि एनलार्ज हो जाता है और उसमें साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और इसी सेल को हम बोलते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल. दिस सेल इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल. तो देखो बच्चों, हम जब मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे तब क्या होता था, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करते थे, लेकिन यहाँ पर एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनता है. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में
all the cells of sporogenous tissue has the potentiality to develop into pollen mother cell और माइक्रोस्पोर मदर सेल. बट इसमें आपके न्यू सेलस में काफ़ी सारे सेल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आर देयर, बट द ओनली वन सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड डेवलप्स इनटू मेगास्पोर मदर सेल. ओके, नाउ ये जो है आपका मेगास्पोर मदर सेल, इट अंडरगोस मियोसिस. अभी देखो, अभी तक कोई डिवीजन इसमें नहीं हुआ, तो दिस इज एमएमसी. इसका प्लॉइडी कितना होगा 2n, क्योंकि अभी तक इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू अप टू दिस. अभी हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, एंड देन हाउ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, सो दिस इज द मेगास्पोर mother cell. Okay, and this megaspore mother cell is surrounded by many other, what are these cells? These are the nucellar cells. So these are the nucellar cells. इसके चारों तरफ nucellar cells हैं. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, दिस अंडरगोस मियोसिस, एंड यू नो दैट मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 stages. सो आफ्टर मियोसिस 1 के बाद ये जो आपका एक मेगास्पोर मदर सेल था, नाउ इट डिवाइड्स इनटू 2. इट डिवाइड्स इनटू 2, 2 में डिवाइड हो जाता है. ओके, और इसके चारों तरफ जैसे आपका न्यू सेलर सेल था, वैसे न्यू सेलर सेल्स आर सराउंडिंग दिस 2 cells. ठीक है, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर है, इसका प्लॉइडी कितना है, द प्लॉइडी इज n. प्लॉइडी इज n, और ये दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डायड. ओके, द स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगास्पोर डायड, क्योंकि यहाँ पर 2 मेगास्पोर बना हुआ है, एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एंड दे आर सराउंडेड बाय द nucellar cells. Okay, now then it undergoes meiosis 2. meiosis 2 में क्या होता है, it divides further and it forms 4 cells. 2, 3, 4, तो 4 सेल ऐसे बनाता है, और जिसके चारों तरफ आपका what are these cells? These cells are your nucellar cells. ओके, तो अभी आपके जो 4 सेल बने हुए हैं, ये सारे का प्लॉइडी कितना है, दे आर टुगेदर नोन एज मेगास्पोर टेट्रा, और इनका प्लॉइडी कितना n. ओके, तो अभी आपका मेगास्पोर बन गया. तो यहाँ तक हम उसको, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. सो अप टू दिस द प्रोसेस इज मेगास्पोरोजेनेसिस. सो दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ तक. ठीक है, नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, नाउ अभी हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सेक. ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर अभी आपका 4 बना है, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स
only one megaspore is functional and other three degenerates. बाकी जो 3 होते हैं वो degenerate हो जाते हैं. तो यहाँ पर आपका देखो, so in यहाँ मैं लिख देती हूँ, monosporic development of female gametophyte. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन. इसको पूरा बॉक्स करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर produced from megaspore mother cell, only one megaspore, that is functional megaspore, develops into female gametophyte, and rest 3 megaspore degenerates. इसीलिए आपका जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ. तो ये है आपका क्या बना था, मेगास्पोर टेट्रा, ठीक है. ये मेगास्पोर, दिस इज मेगास्पोर टेट्रा, ठीक है. ये जो मेगास्पोर टेट्राड है ना, इसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट्स, 3 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं. तो बाकी बचा कितना, 1. सो 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स. तो यहाँ कितना रहा आपका, ओनली 1 मेगास्पोर रहा. दिस इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर. दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर इट डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है आप देखो. तो ये हो गया आपका फंक्शनल मेगास्पोर. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर, the nucleus of functional megaspore undergoes mitosis. तो इसमें 3 बार माइटोसिस होता है. तो दिस इज फर्स्ट माइटोसिस. और किसका होगा, न्यूक्लियस का. सेल पूरा डिवाइड नहीं होगा, न्यूक्लियस का. तो ये क्या बन रहा है आपका, बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. दिस इज binucleated structure, ठीक है. Then it undergoes second mitosis of nucleus and it forms 4 nuclei. It produces 4 nuclei. Then it undergoes third mitosis और हर एक डिवाइड होके 2 बन जाएगा. तो अभी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो टोटल आपका 8 न्यूक्लियाई बन गया. Now after the formation of the 8 nuclei, now the cytoplasm
accumulates around each nuclei. तो अभी ये क्या होता है आपका, अब देखो, it develops into, this is 8 nucleated, this is 4 nucleated, this is binucleated. ठीक है, तो अभी इस ये जो सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म बन जाएगा. साइटोप्लाज्म जब एक्यूमुलेट हो जाएगा ये सेल हो जाएगा. न्यूक्लियस विथ साइटोप्लाज्म इज सेल. तो अभी आपका जो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये जो बड़ा सा सेल है, ये सेल इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल रिमेन एज इट इज. ठीक है, आप भी कॉपी में बड़ा सा डायग्राम करो, अच्छे से लेबलिंग करो. एट कंजूस की तरह छोटा छोटा डायग्राम मत करो. ठीक है, आप जब एग्जाम के टाइम पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. अच्छा, यहाँ पर हमने कितना 8 न्यूक्लियाई देखा था. ठीक है, अभी 8 न्यूक्लियाई में से 2 न्यूक्लियाई क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएंगे. ठीक है, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएंगे. और ये जो 2 न्यूक्लियाई है, these 2 nuclei are called polar nuclei. 2 polar nuclei. Okay, now ये जो बड़ा सा सेल है, ये वाला सेल, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल. अभी बाकी कितना न्यूक्लियस बचा आपका, न्यूक्लियाई बचा 6. ओके, उस 6 में से आपका टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, जिस तरफ माइक्रोपाइल होता है उस तरफ क्या होता है, 3 सेल बनते हैं. 3 सेल बनते हैं. व्हाट आर दिस 3 सेल्स, ये जो 3 सेल है, दीज 3 सेल्स आर, ये देखो, ये और ये दोनों है सिनर्जिड. कितना है, 2 सिनर्जिड्स. और ये बीच में जो है वो क्या है आपका, एग सेल. ठीक है, बाकी कितना बचा, 1 2 3 4 5 हो गया, है ना. अभी आपका बाकी सेल का क्या होगा आपका, बाकी कितना सेल बचे, 3 सेल बचे. तो 3 न्यूक्लियस एंड 3 सेल बचा. तो वो जो 3 सेल एंड 3 न्यूक्लियस है, दे फॉर्म द एंटीपोडल सेल्स हियर. दे फॉर्म द एंटीपोडल सेल्स. ये तीनों को हम बोलेंगे एंटीपोडल्स. कितना है, 3. और ये किस तरफ है, चालाजल एंड, चालाजल एंड की तरफ है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज फीमेल गैमेटोफाइट. ये है एक मैच्योर, रेदर आई कैन से मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, आपको अगर एग्जाम में इसका डायग्राम आता है तो आपको पूरा अच्छे से एक बड़ा सा डायग्राम बनाना है. ठीक है, और इसमें आपका आपके बुक में जैसे दिया है वो थोड़ा डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दैट. ठीक है, आपको पता है मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं होता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. होता है बट ऐसे बोर्ड में नहीं होता. ठीक है, ओके. ठीक है, यहाँ पर आपका 2 बड़े बड़े न्यूक्लियाई है
and then here ठीक है। इसका लेवलिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ आपको। एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड्स। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर अभी बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कैरीज द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन है? द एग सेल इज द फीमेल गैमेट, सो दिस इज द फीमेल गैमेट। ओके, सो इट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। सो रिमेंबर चिल्ड्रेन, मेल गैमेटोफाइट is pollen grain, okay, and female gametophyte is embryosec। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर आप कंफ्यूज होते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, द फीमेल गैमेटोफाइट is a 7-celled 8-nucleated structure। ये इसमें देखो 7 सेल क्या क्या है, देखो 7 सेल्स, लेट मी टेल यू। देखो ये एक सेल है, ये बड़ा सा एक सेल है, देन 3 एंटीपोडल है, 2 3 4, ठीक है, हो गया। देन 2 सिनर्जिड है, 5 और 6, एंड एक आपका 7 इज योर एग सेल। ठीक है, तो कितना सेल हुआ आपका? 7 सेल्स। 8 न्यूक्लियाई क्या क्या है? 3 एंटीपोडल का 3 न्यूक्लियाई, एक सेंट्रल सेल का 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड 2 सिनर्जिड का 2 न्यूक्लियाई, एक एग सेल का 1 न्यूक्लियाई। तो लेट मी राइट डाउन हियर। तो सेल्स क्या क्या सेल्स है? एंटीपोडल्स 3, यहाँ उनका न्यूक्लियस भी लिखेंगे, तो उनका न्यूक्लियाई 3, देन सिनर्जिड 2, न्यूक्लियाई भी 2, एग सेल 1, उसका न्यूक्लियस 1। ठीक है, द नेक्स्ट इज योर सेंट्रल सेल। सेल कितना है? 1, बट न्यूक्लियाई कितना है? 2 पोलर न्यूक्लियाई।
ओके, तो अभी टोटल सेल कितना हुआ? 7। यहाँ टोटल न्यूक्लियाई कितना हुआ? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो इन दिस वे द फीमेल गैमेटोफाइट इज ए 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, एग apparatus. What is this egg apparatus? The egg cell plus 2 synergids together constitute the egg apparatus. Clear? ठीक है, सो ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट, और प्रीवियस सेशन में हम मेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेट का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ध्यान से आप सुनो, नोट्स में हर एक चीज़ को लिखो, जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे लिखो, और जहाँ पर मैं डायग्राम कर रही हूँ बड़ा बड़ा डायग्राम करो, कंजूसी एकदम से मत करो। एग्ज़ाम में भी कंजूसी नहीं करना है, पेपर में बड़ा बड़ा डायग्राम करके उसको लेवलिंग करो। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, लेवलिंग नहीं है तो डायग्राम का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन चिल्ड्रेन, आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, सो टेक द होमवर्क। अच्छा, ये होमवर्क में मैं आपको कुछ लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट in angiosperm is called monosporic. Okay, number 2, write the ploidy of each and every cells of female gametophyte. Write the function of each and every parts of an anatropous ovule. ठीक है, then fourth question, draw the diagram of a mature anatropous ovule. तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपको करना है, इसमें थोड़ा आपको सोचना है कि आपको डायग्राम में क्या देना है फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें भी आपको थोड़ा सोच के इसका, एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक द हेल्प ऑफ गूगल और चैट जीपीटी। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द गैमेट, द अदर इवेंट ऑफ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, till then, bye bye, thank you.